Okay, so we are going to talk about electromagnetism. So this is magnetism produced by the flow of electric current. A current carrying conductor exhibits a magnetic field. So when we say exhibits, it generates a magnetic field. अगर एक कंडक्टर में करंट मूव कर रहा है, and when we say current, we are talking about direct current. When we say current, we are talking about direct current. So if a conductor is carrying a current, then it will be generating a magnetic field. So क्या होता है, हम लोग एक सर्किट बनाया, and if you look at the circuit, we have a variable resistance associated with the circuit. Can you see that? We have a variable resistance associated with the circuit. ठीक है? So हम लोग ये बनाया, and we allow the current to flow. हम लोग देखते हैं कि when the current starts flowing, there is a magnet here. ये magnet इस तरह से है. It is parallel to the direction of the conductor. Conductor से वो parallel है. फिर से ये magnet जो है, it's a magnetic needle. This magnetic needle is in the same direction as the conductor. But जैसे ही ये करंट मूव करने लगता है, this needle undergoes a deflection. This needle undergoes a deflection. ठीक है? Now please समझिए, the deflection only happens when the current starts flowing. यानी अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा था. ठीक है? सो द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द करंट. जितना ज्यादा हम लोग करंट बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा मेरा डिफ्लेक्शन होने लगता है. क्यों? और ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है? Why the needle deflects? Deflection is just another term for movement, and something only moves when there is a force. A body continues in its state of rest until unless an external flow force is applied on it. Do you agree with me on that statement or not? So a magnetic needle is deflected only when another magnetic field is present. अगर आपके पास एक मैग्नेट है और वो अकेला बैठा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. But as soon as you get another magnet associated in its vicinity, it will start deflecting. Do you understand the point? Deflection is only possible when there are two magnetic fields generated either by two magnets or a magnetic field generator. What is a magnetic field generator? Something that can create a magnetic field. यानी एक तो ये एक मैग्नेट हो गया. This is a magnet. This is not a magnet. ये कॉपर कॉइल है. कॉपर अमैग्नेटिक होता है. मतलब it is not affected by a magnetic field. कॉपर अलोन, उसको अगर कॉपर के सामने आप मैग्नेट लाएंगे, कॉपर हिलेगा भी नहीं. कॉपर को मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है. यानी द डिफ्लेक्शन इज हैपनिंग ओनली बिकॉज द करंट इज मूविंग. और कॉपर के जगह जब हम लोग ये सेम चीज एल्यूमिनियम वायर से करते हैं या सिल्वर वायर से करते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट कि वायर, सिल्वर वायर इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, the aluminum wire is not getting affected. There's no deflection when there's no current moving through these wires, but the deflection happens as soon as the current flows through these wires. ठीक है? यानी डिफ्लेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि there's something generating the magnetic field, and therefore we say that या तो दो मैग्नेट होना चाहिए या एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होना चाहिए, या दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होना चाहिए, which in our case is the current carrying conductor. So ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर क्या है? जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर का काम कर रहा है. डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कैन यू प्लीज कॉपी? ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, एक डायग्राम आपको यहां दिया हुआ है. ओके, सो द करंट इज मूविंग इन दिस कॉइल लाइक दिस. याद रखिएगा, हम लोग यहाँ जो भी करंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट
एक्चुअल करंट्स, कन्वेंशनल करंट्स, ठीक है। सो जब भी एक कंडक्टर करंट कैरी करता है, जब भी एक कंडक्टर करंट कैरी करता है, देन इट जनरेट्स अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? इट विल जनरेट अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, फिर से समझिएगा, व्हेन वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो if the current is moving like this, then the magnetic field will be moving like this, ठीक है। How do we know this? ये आपको देख के यहां से नहीं समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा। This is known as the right hand thumb rule. Your thumb will point towards the direction of the current, direction of the current. And then your fingers are going to wrap around the wire. जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स वायर के चारों तरफ रैप अराउंड करता है, उस डायरेक्शन में यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से समझिए, सो इफ इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, विल टेक द थंब एंड विल पॉइंट इट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन वील रैप अराउंड आवर फिंगर्स। तो जो जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स रैप अराउंड करता है, दैट डायरेक्शन विल गिव यू द direction of the magnetic field. So if we look at this, it is this one is going down, and if you put your thumb in the direction of the current, then you will obviously find that the current is going in the clockwise direction in this case, and the anti-clockwise direction when it is going up. Clear hai baat? And yes, we are talking about conventional currents, not actual currents. Now magnetic field due to a current in a circular coil. So हम लोग के पास क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। इन द सर्कुलर कॉइल द करंट इज मूविंग इन अ कॉइल फॉर्मेट, ठीक है, इस तरह का एक कॉइल में है, ठीक है। हम लोग वायर को इस तरह से अरेंज किया है कि इट इज गोइंग इन टू द कार्डबोर्ड थ्रू अ होल एंड कमिंग आउट ऑफ द अदर साइड, and then it is going into the cardboard from the same side and then coming out of it, correct? This is a coil formation, ठीक है ना। यहां हम देखेंगे द करंट इज मूविंग अप, और अप डायरेक्शन में वो इस तरह से सर्कुलेट होता है, यस नो। अभी हम लोग देखा अप डायरेक्शन में वो इस तरह से सर्कुलेट होगा, यहां ये नीचे जा रहा है तो यहां ये इस तरह से सर्कुलेट होगा, यस और नो। डू यू अग्री? डू यू अग्री? Therefore we will say that this is a magnetic field generated, magnetic field generated by a circular coil. It is a magnetic field generated by a circular coil. Now, let us take the example of a bar magnet. In a bar magnet, the magnetic field comes out of the North Pole and goes into the South Pole outside the magnet. और मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? साउथ पोल से वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ा है, करेक्ट? Now if you look at it, if you look at how the diagram is coming out because of these circular motions, ऐसा मोशन हो रहा है and then ऐसा मोशन हो रहा है, करेक्ट? If you look at the diagrams here, आपको क्या दिख रहा है? That the field line are going into the coil here. इस पार्ट से
इट इज गोइंग इनटू द कॉइल, यस और नो? इस पार्ट से अगर आप देख रहे हैं, इट इज गोइंग इनटू द कॉइल। अग्री कर रहे हैं कि डिसअग्री कर रहे हैं? अग्री कर रहे हैं? अग्री कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड किस पोल में एंटर करता है, किस पोल के थ्रू एंटर करता है? साउथ पोल। अब आप देखिए कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी अगर मेरा कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन वी गेट अ साउथ पोल। अब आप इसी चीज को उल्टे साइड से देखेंगे तो आपको कॉइल कुछ इस तरह से नजर आएगा और आपको करंट कुछ इस तरह से नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में नजर आएगा। So if you see that the current in the coil is moving in the anti-clockwise direction, then the current is moving in through a north pole. क्योंकि अगर आप उस साइड से देख रहे हैं, if you're looking in from this side, then the magnetic field lines are coming out of the coil. Do you agree? Do you agree? Let me just do this for you once more. I think it will be great. Let's see. मेरे पास एक coil है, bat coil. This is a coil. ठीक है? Okay. Let's looks better like this. So what am I saying कि यहाँ इस डायरेक्शन में मेरा करंट मूव कर रहा है। सो इफ यू लुक हियर, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, लाइक दैट। यस और नो? यस और नो? ठीक है। और यहाँ ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा। यस और नो? अग्री कर रहे? ये बाहर की तरफ लगेगा और ये ऐसा, है ना? सो अगर आप इसको ऐसे कवर कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, अच्छे से ध्यान दीजिए। कौन सा ऐसा पोल है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है? नॉर्थ पोल। ठीक है, देखिए ये इस तरह से रोटेट कर रहा नॉर्थ। यानी अगर कॉइल में आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन नजर आता है, देन यू गेट अ नॉर्थ पोल फ्रॉम दैट फेस। कोई भी कॉइल का दो फेस होता है, एक फ्रंट और एक बैक होता है। जिस फेस में आप देख रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द फेस, वो नॉर्थ पोल हो गया। और उसमें हमेशा आप देखेंगे कि द करंट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द कॉइल। इसके ऑपोजिट फेस में, सो इफ यू लुकिंग फ्रॉम हियर तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, बट इफ यू लुकिंग फ्रॉम हियर तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा। डू यू अग्री? तो इस साइड से आपको साउथ पोल नजर आएगा और इस साइड से नॉर्थ पोल नजर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? प्लीज कॉपी। अब देखो भाई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रखता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक कोयल में उतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। We do not have a very highly strong magnetic field using just one coil. So we have multiple coils. We have multiple coils. We don't have one coil. We have multiple coils. So जब हमारे पास एक से ज्यादा coil रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं solenoid. This is a solenoid. ठीक है? So what are the properties of magnetic field lines in a solenoid? भूल जाइए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि एक बैटरी से करंट निकल रहा है, एक बैटरी से
करंट निकल रहा है एंड ये ऐसा गया एंड देन ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, पीछे से जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है ना, समझ में आ रहा ना, ऐसे से घूम रहा है, करेक्ट। सो ऐसे 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 से घूम रहा है इधर, ये यस और नो। सो इफ यू लुक एट इट, ये किस तरह डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, यानी ये साउथ पोल निकला, है ना। एक कॉइल का साउथ पोल है, इसका भी साउथ पोल है, इसका भी साउथ पोल, इसका भी साउथ पोल, इसका भी साउथ पोल, ये भी, 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 सबका साउथ पोल एक साथ मैग्नेटिक फील्ड को अंदर पुल कर रहा है, करेक्ट। तो व्हेन यू हैव मोर देन वन कॉइल, एक कॉइल है उसका एक सर्टेन स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दो कॉइल है डबल होगा, तीन कॉइल है ट्रिपल होगा, 10 कॉइल है 10 टाइम्स होगा, 100 कॉइल है 100 गुना होगा। अग्री कर रहे कि डिसअग्री कर रहे हो? यानी अगर यहाँ एक साउथ पोल क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ एक नॉर्थ पोल भी क्रिएट होगा। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा बात? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द सोलेनॉइड। ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, अंदर में ये पैरेलल हो जाता है, बिकॉज सो मेनी ऑफ देम आर देयर, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर में एकदम पैरेलल की तरह मूव करता है, बिकॉज द कॉइल इज वेरी नीटली वाउंड अप, ठीक है, inside the solenoid, and also parallel to the axis of the solenoid. So if the solenoid is a straight line like this, axis is like this, then बाकी भी ऐसा होगा। Yes, magnetic field lines become denser on increasing the current. ये तो हम लोग भी देखा है भाई। The strength of the magnetic field increases with increase in current. Deflection increase क्यों करता है भाई? मूवमेंट ज्यादा क्यों होता है? फोर्स ज्यादा होता है तब ना मूवमेंट हो रहा है। ये सुनो, फोर्स ज्यादा तो मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। सो अगर आपके पास बहुत सारा कॉइल्स है, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होता ना भाई, वो वायर ही है ना, करंट ज्यादा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, मतलब ज्यादा फील्ड लाइन मिलता है, ज्यादा फील्ड लाइन मतलब ज्यादा फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिड इज इंक्रीज्ड। एक कॉइल का अगर 1 यूनिट का, एक कॉइल का 1 यूनिट मैग्नेटिक फोर्स है, 100 कॉइल का कितना होगा? 100। 101 का कितना होगा? 101 यूनिट होगा, ज्यादा होगा ना। So if you increase the number of turns, then the magnetic field also increases because there is more lines. Adding a soft iron core, adding a soft iron core increases the strength of the field. एक सॉफ्ट आयरन कोर ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा? दिस इज नोन एज इंडक्शन, उसपे भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इट विल ऑल्सो बिकम अ मैग्नेट। तो उसकी वजह से क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। फिर से समझिए, if you bring a magnet near a soft iron bar, that soft iron bar also becomes a new magnet, and वो मैग्नेट तब तक रहता है जब तक वो परमानेंट मैग्नेट उसके पास रहता है। ये हम लोग पढ़ा है राइट, कि एक सॉफ्ट आयरन बार है, उसके सामने हम लोग एक बार मैग्नेट लेकर आते हैं, तो ये सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेट बन जाता है। जैसे ये हटा देते हैं तो ये वापस डीमैग्नेटाइज हो जाता है, एंड इट इज नॉट मैग्नेटिक एनीमोर, करेक्ट। सेम चीज यहां भी होता है। सो जब वो खुद मैग्नेट बन जाता है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना। So adding a soft iron core increases the strength of the magnetic field. Clear है? And I'll show you this when I open up a ceiling fan or something in front of you. I'll show you how the solenoid works. I'll show. Similarities between a bar magnet and a solenoid. Bar magnet and solenoid बहुत same है. The magnetic field is same. ये हम लोग बोलेंगे सिमिलर। सेम होता है ना, अंदर से अंदर में पैरेलल, बाहर में ऐसे, है ना। When suspended freely, a solenoid points in the north and south direction as any other bar or magnet. Horseshoe magnet नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। हॉर्सशू मैग्नेट कर सकता है, उसके दोनों ही सामने की तरफ है, यस। बट अगर आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे फ्रीली तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, सोलेनॉइड भी करता है। 9th का पढ़ाई से रिलेट करना आपको, ये 9 में मैग्नेटिज्म किया है। A current carrying solenoid also attracts other magnetic bodies. A current carrying solenoid also attracts other magnetic body. अगर आप एक current carrying solenoid ले आते हैं
व्हाट इज द वर्ड? करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अगर आपका करंट ही नहीं तो सोलिनॉइड पे मैग्नेटिज्म कहां से आया? और सोलिनॉइड क्या है? बहुत सारा टर्न्स टुगेदर, बहुत सारा वायर का लूप टुगेदर, दैट्स अ सोलिनॉइड ना, है ना? अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, अ करंट कैरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल्स। सोलिनॉइड क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ कॉइल्स। अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड आल्सो अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक बॉडीज। मतलब वो खुद मैग्नेटिक होगा तभी ना दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अग्री कर रहे हैं? इवन इफ द अदर बॉडी इज नॉट मैग्नेटिक, अगर सॉफ्ट आयरन रहेगा तो भी वो पुल कर लेगा। डिसिमिलैरिटी, व्हाट इज नॉट सिमिलर बिटवीन अ सोलिनॉइड and a bar magnet? Dissimilarity between a bar magnet and a solenoid. सोलिनॉइड में करंट से होता है मैग्नेटिज्म, करंट बढ़ाया मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ा, करंट कम किया मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम हो गया। बार मैग्नेट में ये नहीं होता है। बार मैग्नेट में हो सकता है? बार मैग्नेट को हथौड़ी मारेंगे तो जाके उसका मैग्नेटिज्म जाएगा, गर्म करेंगे तो जाएगा। If you hit a magnet, it tends to lose magnetic strength. If you heat a magnet, it tends to lose magnetic strength. Correct? But यहां तो वो सब चीज कर नहीं रहे, ना तो हम उसको आग में डाल रहे ना उसको जोर से मार रहे हैं। यानी व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द करंट और आई एम डिक्रीजिंग द करंट। तो फील्ड का प्रॉपर्टी बढ़ भी जाएगा, फील्ड का प्रॉपर्टी कम भी हो जाएगा। करेक्ट? करेक्ट? समझ में आया बात? एंड अगर आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है? फिर समझिए, साउथ है तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ पोल बन जाएगा। समझ में आ रहा बात? मतलब द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाता है, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। आर वी इन अग्रीमेंट हियर? ठीक है? याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो करंट के वजह से मैग्नेटिक है। मतलब करंट अगर खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। और ये चीज आप ऊपर देखेंगे तो नजर आ जाएगा। इफ यू टर्न ऑफ द स्विच ऑफ योर फैन, it is not going to move because it has a lot of coils inside. The movement only happens because the coils generate magnetic field with which interact with permanent magnets inside the fan. फैन के अंदर भी एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एंड जब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट से इंटरैक्ट करता है तो एक मूवमेंट क्रिएट होता है। अगर ये फील्ड ही, इफ दिस फील्ड इटसेल्फ इज नॉट गेटिंग जनरेटेड, मतलब करंट जब फ्लो नहीं कर रहा है, फैन मूव नहीं करता है। ठीक है? मैक्सिमम चीज जो आप आज यूज करते हैं, दे आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट इन्वेंशन। इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। वो सारा चीज इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्या टेक्नोलॉजी है? करंट को अगर मूव करोगे कॉइल के फॉर्मेट में, आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मतलब आप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट कर सकते हो। दैट्स अ डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऐसे भी, बट यू कैन डायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? समझ में आ रहा बात? यू शेप है, विल डू इट। पहले इसको कॉपी कीजिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कॉपी। ओके, okay, so we'll just do this and wrap up the class. यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? हम लोग यहाँ कॉइल को ऐसा रैप करते हैं कि जब मेरा करंट फ्लो करे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे एंड वो एक नॉर्थ पोल जनरेट करे।
फिर हम लोग यहाँ से हम लोग लेते हैं वायर को and हम लोग एक और कॉइल बनाते हैं जो ऐसा करंट फ्लो कराए कि वो एक साउथ पोल जनरेट यहाँ करा दे, एंड देन हम लोग पूरा कनेक्ट कर देते हैं. सो बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर इन द सेम डायरेक्शन. So the magnetic strength is doubled because both the magnetic strength are in the same direction. Or how do we increase the strength of an electromagnet? By increasing the number of turns, by increasing the current, and that's it. That's an electromagnet, a U-shaped electromagnet. So हम लोग वो कर लिया है. This is a U-shaped electromagnet. We know this. So we'll be doing how a U-shaped electromagnet is used to ring an electrical bell. So we'll do that in the next class. Okay. So just copy this diagram. I think that's a very easy explainable diagram, and we will continue this in the next class.